Hello everyone, I'm Anvir from IBT Overseas. I welcome you all to IBT official YouTube channel. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी एलिजिबिलिटीज हैं यूएसए स्टडी वीज़ा के लिए. We got so many calls and so many WhatsApp messages from different students from different parts of our country, and they generally ask about, sir, am I eligible for USA study visa or not? As you know, there are different types of study visa allotted by US Embassy. The first one we talk the most famous, that is F1 study visa. The other type of visas are J1 and M1. These are short-term visa, this J1 and M1 visa, and they are basically for some sort of training. They're basically for short-term courses. They're basically for vocational training and cultural exchange programs. And if we talk about the majority of the students जो USA स्टडी के लिए जाते हैं, USA स्टडी के लिए अप्लाई करते हैं, they fall in the category of F1 स्टडी वीज़ा. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है USA F1 स्टडी वीज़ा कैटेगरी के लिए. सो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हमारे सामने आता है दैट इज़ एज लिमिट, कि हमारा एज कितना होना चाहिए ताकि हम USA स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकें. As such, there is no such age defined by US Embassy, by US Immigration कि कितनी एज वाला स्टूडेंट या कितनी एज वाला पर्सन USA स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है एंड इंटरव्यू के लिए अपेयर कर सकता है. एक ऐसा एज होना चाहिए कि जिस एज में वीज़ा ऑफिसर आपसे एक अच्छे से कन्वर्सेशन मेंटेन कर सके. He can ask you question and you should be able to answer the question. ना तो वो एक छोटे बच्चे वाला एज होना चाहिए, ना बहुत एजड पर्सन का एज होना चाहिए. अगर हम इसको एक एज बार में डिफाइन करते हैं तो इट इज़ अराउंड 14 to 79 ईयर्स ओल्ड. कोई एक 14 साल वाला स्टूडेंट या 79 ईयर्स वाला एजड पर्सन भी यूएसए इंटरव्यू के लिए अपेयर कर सकता है. वी गॉट सो मैनी वीज़ाज like for different age groups starting from 15 years, 16 years, 17 years and going up to 62 years till now. Recently we got a visa for the person who was retired from the bank and he appeared for MBA course in California and his age was 62 years old. So earlier we were somehow like worried कि जब हमारा एज 40 से ऊपर होता है, 50 होता है, 60 होता है, तो एक हमारे मन में डाउट होता है कि हम इस एज में कैसे स्टडी करने चाहेंगे, क्या वीज़ा ऑफिसर हमें एज अ स्टूडेंट ट्रीट करेगा कि नहीं करेगा. आई वुड लाइक टू क्लियर दिस फैक्ट टू ऑल ऑफ यू दैट basically we used to say there is no age to learn, but this things is actually proved by US Embassy. जब वो like aged person को भी वीज़ा अलॉट कर रहे हैं by just looking into your endeavors कि are you actually going to be a student being in USA या फिर वहाँ पे जाके आप illegal होने वाले हैं. सो सेकेंड फैक्टर हमारे पास आता है क्वालिफिकेशन का. नॉर्मली जो क्वालिफिकेशन एक्सेप्ट की जाती है F1 वीज़ा कैटेगरी में दैट इज़ 10+2. आपने किसी भी स्ट्रीम में किया, आर्ट्स में किया, कॉमर्स में किया, साइंस में किया है, नॉन मेडिकल में किया, यू आर एलिजिबल. एंड मैक्सिमम qualification it goes till masters and PhD. We've seen so many doctors, they are well qualified, they have done MD and they go for some sort of training and they also get the visa. We've seen some of the professors, some teachers, some businessmen, some entrepreneurs, they are able to get the visa. So qualification is like it should be minimum 10+2 and above it can be anything. And my suggestion to the students जिन्होंने basically +2 किया they are eligible for bachelors, जिन्होंने bachelors किया they are eligible for masters. अब जिन्होंने मास्टर्स किया अगर वो कॉन्फिडेंट है बिकॉज मास्टर्स के बाद आपको वहाँ पे डायरेक्टली मास्टर्स ही मिलेगा एंड द ड्यूरेशन विल बी फॉर 2 years. एंड अगर आप कैपेबल इनफ हो इंटरव्यू में जस्टिफाई करने के लिए कि आप दोबारा मास्टर्स क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दिस गोना बी द टॉक ऑफ द टाउन व्हेन यू विल बी इन द इंटरव्यू. पूछा जाएगा आपसे व्हाई आर यू पेयरिंग फॉर द मास्टर, व्हाई आर यू स्पेंडिंग मनी ऑन द मास्टर्स अगेन. If you're good enough to justify this question, it is okay, don't hide it. But I recommend the students, those find difficulty to elaborate, those find difficulty to tell to the visa officer, because this question must gonna come. So वो स्टूडेंट अपनी मास्टर्स को हाइड कर सकते हैं, कुछ एक्सपीरियंस मेंटेन कर सकते हैं उस टाइम के लिए. हाँ, आपको अगर कोई सेपरेटली क्वेरी है, इंडिविजुअल क्वेरी है, तो आप हमारे किस ऑफिस के नंबर 8677812345 पे कॉल करके कंसल्टेशन भी ले सकते हो. अब थर्ड फैक्टर यहाँ पे आता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी. It is desired and actually required
फॉर यूएस स्टडी वीज़ा कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, आप प्रेजेंटेबल होने चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द I-20 प्रोसेस, जब आपको एडमिशन करवाना है अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, तो इट वेरीज फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। सम यूनिवर्सिटी दे एक्सेप्ट IELTS examination at least 6 or 6.5 bands, some only require 5 bands, some only require 5.5 bands. Some university they also accept TOEFL exam, they also accept Duolingo. TOEFL का देखें, Duolingo का देखें, PT का देखें. So these exams are highly acceptable in USA and in almost most of the good universities also. अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के रिक्वायरमेंट कोर्स टू कोर्स GMAT का रहता है, GRE रहता है, SAT का रहता है। सो दीज आर द इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जामिनेशन, जिनमें से किसी एक को आपको अपीयर कर लेना है ताकि आपको इसमें डबल बेनिफिट हो सके। एक तो आपका एडमिशन एक अच्छी यूनिवर्सिटी में हो सके, एक पब्लिक इंस्टीट्यूट में हो सके। दूसरा इसमें बेनिफिट क्या रहेगा कि जिस टाइम आप उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, आपका इंग्लिश का प्रोफिशिएंसी, आपके इंग्लिश के स्पीकिंग स्किल्स, आपकी प्रेजेंटेशन, आपका बॉडी लैंग्वेज, वो भी काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा उस टाइम के लिए। जो स्टूडेंट टाइम नहीं देना चाहते इनमें से किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए, उनसे मेरा एडवाइस है कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो MOI मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के ऊपर भी आपका एडमिशन दे देते हैं आपको, और आपको I-20 इशू कर देंगे। सो दिस इज़ बेसिकली अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। आपको अपने स्कूल या कॉलेज से इशू करवाना है जहाँ से आपने 10+2 किया है, जहाँ आपने ग्रेजुएशन या मास्टर्स किया है, एंड दिल हैव टू राइट ऑन द लेटर हेड दैट you have studied all the subjects in your previous qualification in English. So that will be like a confidence, a credibility you are giving to your university, to your institute, as well as to the visa officer, that your previous qualification was in English. सो ये हमारे पास यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का रहा। अब लास्ट में हमारे पास आता है फंड्स का, बिकॉज फंड्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन यू अपेयर फॉर द इंटरव्यू एंड व्हेन यू टेक एडमिशन इन एनी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो फंड्स का जो रिक्वायरमेंट रहता है, फंड्स शुड बी ऑफ योर पेरेंट्स और योर ग्रैंड पेरेंट्स और समवन फ्रॉम योर ब्लड रिलेशन. We strongly recommend it should be from your parents and grandparents. If you are going for a spouse visa, F1 F2 कैटेगरी दोनों के लिए जा रहे हैं, तो वी रिकमेंड 30 to 40% फंड्स जो F1 के होने चाहिए, और जो बाकी रिमेनिंग फंड्स दैट शुड बी फ्रॉम द F2 योर स्पाउस के आपके फंड्स होने चाहिए. अब फंड्स यहाँ पे कितने होने चाहिए अगर आप एलिजिबिलिटी को देखें, नॉर्मली जो यूनिवर्सिटी का रिक्वायरमेंट रहता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 20 लाख 25 लाख गोज अप टू 30 और 40 लैक्स. एक अगर हम सही अमाउंट पकड़ के देखें तो दैट इज अराउंड 35 लैक्स. आपको अपने सेविंग अकाउंट में रीसेंट 35 लाख के फंड्स दिखाने हैं ऑन द नेम ऑफ योर मदर, फादर और एनी ऑफ योर लाइक क्लोज फैमिली मेंबर्स, एंड उसके बाद यू हैव टू सबमिट द सेम स्टेटमेंट एंड योर लाइक बैंक स्टेटमेंट एंड योर बैलेंस सर्टिफिकेट टू योर रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज एंड यू विल बी गेटिंग योर I-20. सो दीज आर मेजर 4 फैक्टर्स जो यूएसए स्टडी वीज़ा के लिए लाइक कंसीडर किए जाते हैं. और अगर ये फैक्टर्स आपके प्रॉपरली जस्टिफाइड हैं, आपने इंटरव्यू का सही से प्रेपरेशन किया है, आपका कंसल्टेंट इंटेलिजेंट है, उनके पास अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपके कोर्स का सिलेक्शन अच्छा है, तो आई कैन बेट दैट कि आपको कोई भी यूएसए स्टडी वीज़ा लेने से नहीं रोक सकता. अगर आपको कोई कंसल्टेशन लेना है, कोई एडवाइस लेना है, अपनी प्रोफाइल को एक्सेस करवाना है, तो यू कैन विजिट एनी ऑफ आवर नियरेस्ट ऑफिस दैट इज इन जालंधर, इन लुधियाना, इन पटियाला एंड इन चंडीगढ़. आप अपनी प्रोफाइल को एक्सेस करवा सकते हैं, कोर्सेज की सिलेक्शन हम करवाएंगे, फ्री काउंसलिंग अवेलेबल है. आप हमारे ऑफिशियल नंबर 8677812345 पे कॉल करिए, अपनी प्रोफाइल को शेयर करिए, व्हाट्सएप से शेयर करिए, इंस्टेंट आपको आपकी यूनिवर्सिटीज़, आपकी कोर्स सिलेक्शन हम वापस भेजेंगे. और एक मेरा और आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि बाकी भी स्टूडेंट्स इस वीडियो से जिनको एलिजिबिलिटी में कोई डाउट है वो भी इस वीडियो को देख के अपना यूएसए जाने का सपना साकार कर सके. थैंक यू.